My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, today's promise is taken from Joshua 1:3. आज की प्रतिज्ञा यहोशू 1:3 से ली गई है। God says to Joshua, परमेश्वर ने यहोशू से कहा, I will give you every place where you set your foot. जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। This promise comes to you today. आज ये प्रतिज्ञा आपसे भी परमेश्वर करते हैं। He says, get up, वो कहते हैं उठ खड़े हो, get up from your sluggishness, ढिलाई करने से उठ खड़े हो, get up from your position of fear, अपने भय के स्थान से उठ खड़े हो, get up from the miry clay of sin, पाप के दलदल से उठ खड़े हो, get up from the wrong relationships, गलत रिश्तों से बाहर निकल आओ, get up from your unbelief, अपने अविश्वास से बाहर निकलो, get out of your weaknesses, अपनी कमजोरियों से बाहर निकलो and set your foot forward. और अपने पांव को आगे की ओर रखो। I want you to inherit the land of blessings for your life. मैं चाहता हूं कि तुम उन आशीषों के जमीन पर वारिस बनो। Time has come वो समय आ गया when God wants you to move forward. जब परमेश्वर चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। Today, take a step forward. आज एक कदम आगे की ओर बढ़ाएं, Put your step forward अपने कदम को आगे बढ़ाएं and begin to inherit the blessings God has for you in your life. और उन आशीषों को जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखा है उसके वारिस बने। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, for you to inherit every blessing, how should your feet be? कैसे आपके पांव हों ताकि आप उन आशीषों के वारिस ठहरे। Firstly, your feet has to be sanctified. पहली बात, आपके पांव को पवित्र होना है, शुद्ध होना है। Hebrews 12:13 says, इब्रानी 12:13 कहता है, make level paths for your feet, अपने पांव के लिए सीधा मार्ग बनाओ so that the lame may not be disabled but rather healed. कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। God wants you to have your feet leveled. परमेश्वर चाहते हैं कि आपके पांव सीधे मार्गों पर चले। In another translation, He wants it to be sanctified just like the feet of Christ. और दूसरे अनुवाद में ये कहता है कि हमारे पांव यीशु मसीह के जैसे शुद्ध हो, So that the Lord Jesus will be able to walk with you and you will be able to walk with Jesus. ताकि यीशु मसीह आपके साथ चल पाए और आप यीशु मसीह के साथ चल पाए। Today, whatever sin may be besetting you, which is stopping you from moving forward, ask God to cleanse it and make your feet clean. आज जो भी पाप आपको थामे हुए हैं और आगे बढ़ने से रोकते हैं, यीशु मसीह से कहें कि खुदा उन पापों से हमें क्षमा कर। According to John 13:1-3, यूहन्ना 13:1-2-3, when Jesus knew that God had given him all the authority to move forward, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, he took off his clothes, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार put a दिए towel around his waist, और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी took water, और पानी लिया and washed the feet of the disciples, और चेलों के पांव पोंछने लगा, cleansed it, उन्हें साफ किया so that they could follow him into the paths of righteousness to inherit God's kingdom. ताकि परमेश्वर के राज के वारिस होने के लिए वे उसके पीछे चल पाए पवित्रता के साथ। Today, Jesus wants to cleanse your feet. परमेश्वर आज आपके पांव को शुद्ध करना चाहते हैं। Give your feet to him. अपने पांव को सौंप दे, Give your heart to him. अपने हृदय को सौंप दे, Ask him उससे to पूछिए wash you away from all the worldliness so that you can walk with Jesus. कहें कि हमें संसारिकता के हर एक बातों से धोकर शुद्ध करे ताकि आपके पीछे चल पाए। Secondly, दूसरी बात, your feet should be full of peace. आपके पांव शांति से भरे हुए हों। Ephesians 6:15. इफिसियों 6:15। Yes, your feet should be fitted with readiness that comes from the gospel of peace. और तुम्हारे पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूते पहन लो। The Bible says in Hebrews 12:14, बाइबल कहती है इब्रानी 12:14 में,
that you should maintain peace with all men. कि तुम हर एक मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो, And then you will have holiness and you will see the face of Jesus. और तब तुम्हारे पास पवित्रता होगी और तुम परमेश्वर के मुख को देखने पाओगे। So maintain peace with all men, इसलिए हर एक मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखे। especially husband and wife should be full of peace. विशेषकर पति और पत्नी के बीच में शांति हो, Peace with each other. एक दूसरे के साथ शांति For मेल that it मिलाप। takes the nature of Jesus to humble oneself and carry the other at all times, at all costs. और इसलिए तो यीशु मसीह के चरित्र की आवश्यकता होती है ताकि हम नम्र और दीन बने रहें और एक दूसरे को अपने हृदय में लेकर चल पाएं। It takes the courage to forgive and to ask for forgiveness and to set right the relationship to be one. और एक बड़ा बल चाहिए, सामर्थ चाहिए क्षमा करने के लिए और क्षमा मांगने के लिए और एक होने के लिए रिश्ते को ठीक करे। And then as peace engulfs the husband and the wife, that peace radiates to the children also. और वो शांति मेल मिलाप जो पति और पत्नी के बीच में होती है वो बच्चों तक प्रभावित होती है। Great shall be the peace of your children. और आपके बच्चों की शांति मेल मिलाप महान Along होगी। with that, और उसके साथ maintain peace with all men, हर एक मनुष्य के साथ मेल मिलाप in the रखें, office, अपने with कार्यक्षेत्र your में, neighbor, अपने पड़ोसियों के साथ and even with your enemies. और अपने दुश्मनों के भी साथ। If a man's ways please God, यदि मनुष्य के मार्ग परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं he will make even his enemies to be at peace with him. और वह आपके दुश्मनों को भी आपके साथ मेल मिलाप करने देगा। Today, have peace with all your enemies. आज अपने दुश्मनों के साथ मेल मिलाप करें। Are you angry because somebody took your land? क्या आप नाराज है क्योंकि किसी ने आपकी जमीन को ले लिया, Somebody took your money and didn't repay. किसी ने आपके पैसे ले लिए और आपको वापस नहीं किया, Somebody worked against you and stopped your promotion. और कोई आपके विरोध खड़ा हुआ और आपके प्रमोशन को रोका, Forgive them. उन्हें क्षमा करें, Love them. उनसे प्रेम करें। That's the path of peace. और यही तो शांति की मार्ग है। Jesus said, if somebody has taken a cloak from you, give him the other one also. और यदि तुमसे कोई एक जोड़ी कपड़े ले तो उसे दूसरे जोड़ी भी दे दो, Then you will have peace. तब तुम्हारे पास मेल मिलाप You'll have होगा, no enemies. तुम्हारे पास दुश्मन नहीं होंगे And you will walk into the inheritance which God has, the blessing of God. और वो परमेश्वर की आशीष और उस विरासत में आप चलेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है। The other man is not going to give you riches. वह दूसरा व्यक्ति आपको धन महिमा नहीं देगा। The money that you get back, what you have given to others, is not going to make you inherit great wealth. वो पैसा जो आपने किसी और को दिया है वो पैसा आपको एक महान विरासत को नहीं देगा, But only what God gives you will make you rich. लेकिन वही जो परमेश्वर आपको देता है वो आपको धनवान बनाएगा। The blessings of the Lord, it makes you rich. परमेश्वर की आशीष आपको धनवान बनाती Maintaining है। peace with everyone is the key for you to inherit the land which God has for you. दूसरों के साथ मेल मिलाप करना ही वह कुंजी है उस विरासत की जो परमेश्वर आपको देता है। Yes, God's blessings will overflow. हाँ, परमेश्वर की आशीष तो बहती चली जाएगी। Thirdly, Psalm 119 and verse 105 says, तीसरी बात भजन संहिता 119 और उसका 105 वचन, God's word is a lamp to your feet, परमेश्वर का वचन मेरे पांवों के लिए दीपक है a light on your path. और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। Yes, do everything according to the word of God. हाँ, हर एक बातों को परमेश्वर के वचन के मुताबिक करें। Do everything after you read the word of God. हर एक बातों को परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद करें And do according to the plan of God. और परमेश्वर की योजना अनुसार करें। Even today, this word of God is coming to you for you to follow so that you can inherit God's blessings. और आज भी परमेश्वर की यह वचन, यह प्रतिज्ञा आपके पास आ रही है ताकि आप उसकी विरासत के भागीदार हो। I'm glad you're listening to this word from God. मैं आनंदित हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। And fourthly, और चौथी बात, Isaiah 52:7. यशाया 52:7, Proclaim the salvation of Jesus to everyone and the gospel of peace too. परमेश्वर के उद्धार का सुसमाचार और शांति की बातों को दूसरों को सुनाओ। And your feet will be beautiful on the mountains. और पहाड़ों पर तुम्हारे पांव सुहाने ठहरेंगे। God will lift your feet
to ride in high places according to Isaiah 58:14. यशाया 58:14 के अनुसार परमेश्वर तुम्हारे पांवों के लिए चौड़े स्थान, ऊंचे स्थान को तैयार करेगा। As you proclaim that Jesus Christ is the Savior, Healer, and Provider to all people who are in need, and pray for them. जब आप इस बात की घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह उद्धारक, शांति देने वाला और हर एक लोगों की जरूरतों के अनुसार उन्हें देने वाला परमेश्वर है। Even today, my friends, और आज भी दोस्तों, I want to share with you what God did for us. और मैं बांटना चाहता हूं जो परमेश्वर ने किया। Many years ago, we were knee deep in debt in the ministry और कई वर्ष पूर्व हम सेवकाई में कर्ज में थे and also in the family. और परिवार में भी। And the Lord said, और परमेश्वर ने कहा, give 1/10 of what you receive, of course, in your personal life, as well as 1/10 of what you receive for Jesus Calls Ministry as donation to other ministries. अपनी कमाई का दशवांश और उन डोनेशन का भी जो यीशु बुलाता में आता है उसका दशवांश दूसरी सेवकाइयों को दें। Yes, give donations to other ministries from what you receive for Jesus Calls, 1/10 of it. और उसका दशवांश जो यीशु बुलाता में डोनेशन के रूप में आता है दूसरी सेवकाइयों को दिया जाता है। So before we could pay all the bills and the debts back, we would give 1/10 of whatever donations would come every month to other ministries to build churches and to care for the pastors. तो इससे पहले कि हम कर्ज चुकाते या किसी दूसरी जरूरतों को पूरी करते, दशवांश को निकालकर हम सेवकाइयों को देते ताकि कलीसियाओं का निर्माण हो। We started helping the poor people too through Sisha. शीशा के माध्यम से हम लाचार लोगों की सहायता भी करने लगे। We started helping other servants of God. और दूसरे दासों का भी सहायता हमने शुरू की। And God, in turn, in 1.5 years, wiped away the debts by providing every blessing miraculously. और परमेश्वर ने 1.5 वर्ष में हर एक कर्ज को दूर कर दिया अपनी आशीषों को देकर। And we could do much more in the ministry to touch millions more. और हम और अधिक कर पाते उन लाखों लोगों को स्पर्श करने के लिए। Even today, we have absolute sufficiency, nothing more, nothing less, to fulfill all the needs of the ministry. और आज भी सेवा की आवश्यकता के लिए हमारे पास बहुत आयत है, कुछ अधिक नहीं, कुछ कम नहीं, लेकिन सेवा के लिए पर्याप्त। I said in a pastor's meeting, मैंने एक पास्टर्स की सभा में कहा, give 1/10 of what offerings you get in the church to the next church which is by your side. अपने कलीसिया के दशवांश को लेकर आप उस दूसरी कलीसिया में बोए जो आपके पड़ोस में है। If they are building their church, you give from 1/10 of what you get in your church as offering to the other church to build their church. यदि आपके पड़ोस में कोई कलीसिया का निर्माण हो रहा है तो अपने कलीसिया के दशवांश को आपके कलीसिया के भेंट में से उस कलीसिया को दे। Give to evangelistic ministries, praying ministries too. जो प्रार्थना करने की सेवकाई है, सुसमाचार सुनाने की सेवकाई, उन्हें दें। Give to ministries which are caring for the poor. जो गरीबों की सुधि लेते हैं, ऐसी सेवकाइयों को दे। Then God will bless your church and you will multiply. और परमेश्वर आपकी कलीसिया को आशीष देगा और आप गुणान्वित होंगे। Thousands of souls will be entrusted by God to your care in your church. और परमेश्वर आपकी देखभाल में हजारों आत्माओं को देंगे आपकी कलीसिया में। You will multiply. आप गुणान्वित होंगे। You will inherit and set foot, and God will give that land to you. और आप विरासत को, उस जमीन को वारिस ठहरेंगे जो परमेश्वर देता है। Nobody can take you away. और उसे कोई आपसे नहीं ले पाएगा। Nobody can shake you out. आपको कोई हिला नहीं पाएगा। You'll be strong. आप मजबूत बनेंगे। Jesus Calls has been graciously established by God for 63 years in this manner. इस तरह से यीशु बुलाता की सेवकाई 63 वर्षों से स्थापित है। God will help you also. परमेश्वर आपकी भी सहायता करेंगे। Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। Father, पिता, bless your children. अपने बच्चों को आशीषित कर। Every stagnation, I command it to stop in Jesus' name. हर एक रुका रहना, थमा रहना जाए यीशु के नाम में। Help their feet to be clean, उनके पांव को साफ करने में सहायता full करें। of peace, शांति से भरे हुए, led by the word of God, परमेश्वर के वचन के द्वारा अगुवाई मिले and और
let their feet go to proclaim salvation and peace. और उनके पांव जाकर सुसमाचार को सुनाएं और शांति के संदेश को सुनाएं। And let them inherit every blessing which you have planned for them. और हर एक उन आशीषों को ग्रहण करे, वारिस बने जो आपने तैयार I किया है। send them into a day of release from this moment. इसी घड़ी से मैं उनको छुटकारे की ओर भेजता हूँ। Thank you for blessing them. धन्यवाद उन्हें आशीष देने के लिए, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। My friend, like this video, प्रिय मित्रों, इस वीडियो को लाइक करें, share it with as many people as possible. अधिक से अधिक लोगों तक इससे साझा करें And also press the notification bell और नोटिफिकेशन के बेल को भी दबाएं and subscribe to this channel. और इस चैनल को सब्सक्राइब करें May you be blessed and millions be blessed through you. और आप आशीषित हो और आपके द्वारा लाखों आशीषित हो। इस मौके को मिस ना करें। தவற விடாதீர்கள் ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. இது நஷ்டப்படுத்துறது। మిస్ చేయకండి हाँ, ये एक ऐसी सभा है जिसको आपको 2025 में नहीं चूकना चाहिए। Your sorrow will turn into joy. बेत्सदा आशीष सभा, रविवार 13 जुलाई दोपहर 2 बजे। And every lump, every boil, every tumor disappear right now in Jesus' name. मेरा ये कान का सामने में बॉल निकला था 2 साइड में और बहुत ही बड़ा हो गया था। जैसे ही प्रेयर कंप्लीट हो गया तो मैंने टच किया तो ये ऑलरेडी सूख गया था। Big boil was there. बिग बॉल वाज देयर। Now it's completely gone. Absolutely nothing. Thank you, Jesus. We welcome you all on July 13th. 13 जुलाई को हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। July 13th is a special day for me. 13 जुलाई तो मेरे लिए बहुत ही विशेष दिन है। That day the Lord anointed me with the Holy Spirit. I know God is going to fill you too. इसी दिन परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक दिया और मैं जानती हूँ आपको भी भर देंगे। It is going to be a great day. ये तो बहुत ही महान दिन होगा There will be deliverance. और छुटकारा होगा। Where the Spirit of the Lord, there is deliverance. जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पर छुटकारा है। Come and be blessed. आकर आशीष पाइए। We'll wait to pray with you. हम आपके साथ प्रार्थना करने का इंतजार कर रहे हैं। Come with all your friends and family. अपने सभी मित्रों और परिवारों के साथ में आइए। बेत्सदा आशीष सभा, रविवार 13 जुलाई दोपहर 2 बजे। स्थान डॉक्टर DGS दिनकरन सेंटर, कारुण्या नगर, कोयम्बतूर। गांधीपुरम बस स्टैंड और कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन से कार्यक्रम स्थल तक विशेष बसें चलेंगी। आवास और यात्रा सहायता के लिए विशेष रूप में अन्य राज्यों या जिलों से आने वालों के लिए कृपया संपर्क करें 9487846601। एक परिवार के रूप में आए।